Hello students, I am Nehal sir, your maths faculty. Today we continue with our chapters. The topic is mode, chapter number 14. Right? We already two sum is completed from this exercise 1.2 exercise. Right? Yani the 15.2 to 14.2 exercise. Right? So the number is question number 3. So question number 3, that means the that means I just question number 13. The following data gives the different distributions of the total monthly household expenditure of the 200 families. Right, in of the village, the model monthly expenditure of the family, and also find the mean monthly expenditures. Right. Okay. So just so the question number 3. This is the expenditures. Right. So here expenditures in rupees and number of families, that means our FI. Okay. So this one is number of families, that is our FI frequency. Right. Okay, so some start from the maximum frequency of the data. So maximum frequency is how much? 40, right? How much? 40, right? Okay, so this one 40, matlab this one, right? Okay, and this one is our F1, right? This one is our F0 and this one is a F2, right? So preceding frequency of the model class F0 and succeeding frequency of the model class is a F2, right? And the maximum frequency is F1. So here a simple for model class, normally here, so we put here model class is equal to, model class is equal to 1500 to 2000. So here L is equal to, students, L is equal to lower limit of the model class कितना है बच्चों? 1500. Okay, frequency, so F1, so F1 is given that 4040, right? यहाँ पे, so first of that I remove this. Okay, चलो 40. Now F0 is equal to 24. Okay, F2 is equal to 33, and class length. Okay, so class length is equal to 500. Class length here H. Okay, yeah, class interval is a 500, right? So let's start mode. What is the formula for mode? So mode is equal to, right, L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 and into H, right? Lower limit of this is equal to 1500 plus F1 minus F2, so 4040 minus 24 upon 42s are 80 minus, okay, this one is 80 minus 33 F2 and F0, that means 24, right? And into H matlab 500, right? Okay, so here 1500, okay, plus here the 40, that means so how much? 40 minus 24, 16, right? Into 500. Now divide by here, so 80 and 80 minus 3 and 5, 7, okay, and 57, right? Okay, so therefore 1500 plus 16, so 16 into 5, 16 5s are 80 and 00, right? Upon, we divide by this, 80 divided by this 50 30, so the 10 minus 3, okay, so 23. Now here we divide 8000, okay, divide by 23, so 23
3 jar 69, right? 10 carry forward here, so 10 carry forward 10, okay, and again 1 0, we divide the 23 4 jar, right? 23 4 jar, right? 10 1, okay, sorry, and 6 minus 1 11, so this 0 is not carry, okay, so simply 10 11 and 1 0 carry, so 110, so 110 मतलब 25 are, so 4 are, right? So 23 4s are 12, 1 carry forward 8 and 92, right? 80, right? So here 8 and 0, 80, that means the 3s are 69 again, so 69, that means the 1 again, 11, sorry, and the decimal here, so 0 we put here 0, 110, so again 110, that means the 4s are 110, that means 4s are, right? So the our approximations are there is equal to approximate, approximate answer is equal to 4 3 8 approximate, I think 23 and 11 approximate answer, so something, right? So the here 1500 plus divide by, so 343.4 5 something, right? So we remove this, right? So now okay, so here we add this, so 1843.45, this is our mode, right? 43. Now in this sum, also in this data we find out also the mean. Here students, okay, we use also the mean by the step deviation method, right? So just see that step deviations method. So first of that here, so now 1500, so class marks matlab the upper limit plus lower limit divide by 2. So here the first of that 2500 divide by 2, 2500 divide by 2, 1225, right? Class length, how much class length कितना था हमने ऊपर देखा बच्चों, class interval, right? Class interval या class length कितना है 5, आप ऐड करते जाओ 500, 500 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1725, फिर 2225, ओके, फिर 2725, ओके, 3225, 3725, okay, फिर 4225 and also here the 4725. चलो clear, this is the class marks, right? UI, that means the assumption any one of these values, right? So I think I taking A has a, right? So we know that this one is 0, this one is -2, -3, okay, and -4. Similarly here 1 2 and 3. Frequency, it is called the sum of frequency, a capital N also, right? Okay, now Fi into this one a frequency and UI, so 24 4s are -96 students, okay, -120, -66, -28, here put 0, okay, 21 2 1s are 22, 16 are 32 and 21, right? सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव जो वैल्यूज है, राइट, उसका टोटल कर देंगे. क्या कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू वाला जो टोटल है वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे, राइट. चलो तो सबसे पहले ए वाला टोटल काउंट कर लेते हैं. ये कितना आया, ये आपका टोटल, तो 5 हियर
Okay, and also here the total 5 plus 2 7, so how much 75, और ए पूरे नेगेटिव टर्म्स का आप टोटल करोगे, so 6 6 12, okay, 28 plus 0 2 carry forward, okay, 11 plus 2 13, 13 plus 6 19, 19 plus 2 21, 2 carry forward, so 3, so minus 310. So our answer here, the 10 minus 5 5, okay, so 10 minus 7 3, okay, and 1, so minus 135, right? Just check it, 3, okay, sorry, 2 here, okay, so here 2, right? So this one is 2 minus 235, right? Okay, now so formula for mean is equal to, by step deviation method, a plus summation fi ui upon sum of frequency, right, and into class, okay, class interval. So you assumption a is equal to 3225 minus 235 into 500 and divide, okay, 200 here, okay. So now simply that here 20 cut, okay. So now here simply we multiply this this one, so by 5, right? So 235 by 25, 5 5s are 25, so 0 10 1 carry forward, 6 and 7, and 2 2s are 4. Similarly 5 5 25, okay, 2 carry forward, 17 1 carry forward, 10 and 11, so 5 7 8 5, okay. So the 3 2 2 5 माइनस हमने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आ गया था 5 8 7 5 डिवाइड बाय 10, so you got the answer 3225 minus here 587.5. You subtract from this, okay, so the answer is equal to here the 3225 minus 587.5, right? Okay, so 5 here, 4 14, so 7 11, so 3, okay, again 11, so 6 and 2 approximate, right? So the answer is this one, okay, 2 6, okay, approximate answer, and suppose, so the first of this 2587, okay, I just check this first eraser, uh, 24 4s are 96, 43s are 120, 33 2s are 66, and 21 are 28. Okay, here the 6 6 12, 12 plus 8 20, 0 2 carry forward, 13 13 plus 6 19, 19 plus 1 21, so 21 1 carry forward, 1 here 2 carry forward, so 310 is right. So again 5 21 are 20, 62 are 32, and 7 3 are 21, it is also the perfect, so 275. Okay, this one is 200, okay, because 200 family is already given that, so I check this total 4 and 7 15 15 and 15 15 and 15 30, 3 carry forward, okay. So the 6 9 9 plus 3, 9 plus 3, okay, so 9 here, 9 9 plus 3,
12, 12 plus 2, 14, 14 plus 5, 19 and 20, राइट, ए भी करेक्ट है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो फिर नो प्रॉब्लम्स। सो द मीन इज अप्रोक्सीमेट आंसर, राइट, इज इक्वल टू हियर, ओके, 2, ओके, 6, 3, 7.5। चलो राइट, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, तो फिर ओके, अप्रोक्सीमेट आंसर के लिए बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द पर टीचर्स, ओके, एंड नंबर ऑफ स्टेट्स दिया है। ओके, तो हर एक स्टूडेंट, तो 15 to 20 ये हमारा क्लास है। ओके, तो दिस वन इज अ फ्रीक्वेंसी नाउ। ओके, so this one is frequency, chalo clear। so the maximum frequency here is a 10, maximum frequency is 10, right, from this data, question number 4। okay, समझ रहे हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक हमारा नॉर्मली डेटा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो 10 है अगर हमारे पास, ओके, ओके, सो द 10, right, so the maximum frequency of this data। okay, so simple students, this one is our f1, right, so this one is a f0 and this one is a f2, right। so here Moodle class is equal to, okay, Moodle class is equal to 30 to 35, right। so the lower limit is equal to 30, right, class length is equal to 5। so the formula for mode, okay, so mode is equal to L plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h, right। so L is equal to, L कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितना है 30, f1 माइनस, so 10 minus 9, right, upon 2f1, so 2f1 that means the 20, right, here 20, so the 2 tens are 20 minus 9 minus 3 and this one is 5, right। okay, so now here the 3030 plus 10 minus 1, 10 minus 9, 1, 1 5s are 5 upon how much, 8, okay, 20 minus 12 that means 8। now okay, so now so therefore 3030 5 by 8, okay, तो इजीली वी आर 2:3, अगर मुझे लाना है 2:3 है तो 125 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 2 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा बच्चों, अब फर्स्ट चैप्टर पढ़े हो ना, 8 मतलब 2:5, तो मैं ऊपर नीचे 125, ओके, और यहाँ पे 125 कर देता हूँ, राइट। 5 के लिए नीचे कितना हो गया, 1000 हो गया, और ऊपर कितना हो जाएगा, ओके, 125 से कर रहा हूँ तो 5 यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा। 125 to 5, 25 to carry forward 12, 1 carry forward, okay, so the 725 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, 1000, राइट। फिर से एक बार चेक कर लो, 5 5 25 टू कैरी फॉरवर्ड 1, तो 625 आएगा, राइट, कितना आएगा 6, ओके, सो दिस वन इज इरेज, ओके, कितना आ गया आपका 625, तो कितना हो जाएगा बच्चों 30 प्लस, राइट, 0.625, राइट। सो फाइनली, ओके, द आंसर इज 30.625, ओके, सो दिस वन इज अप्रोक्सीमेट 6 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, 13.6 दिस इज अवर मोड। चलो क्लियर, राइट, ओके, so this one is our answer for mode।
अब इसी के अंदर मीन भी ढूंढना था बच्चों, तो और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना है। तो ये तो सीधी बात है बच्चों, एवरेज स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा है कि हर एक स्टेट के अंदर अगर देखा जाए तो हर एक स्टूडेंट मतलब जो तो 30 स्टूडेंट के बीच में टीचर्स बराबर है, ऐसा है। आप एवरेज ढूंढते इसी के अंदर, तो चलो एवरेज, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूमिंग मेथड एज्यूम कर रहे हैं। कौन सी? एज्यूमिंग मेथड यूज कर रहे हैं, राइट। चलो, तो आप जानते हो क्लास मार्क्स मतलब दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो 20 प्लस 15 35 बाय 2, ओके, तो कितना आ जाएगा 17.5, राइट, ओके। चलो, तो यहाँ पे आपके पास जो क्लास इंटरवल है ना, यानी एच, तो क्लास इंटरवल बच्चों एच कितना है? 5 है, राइट। एक कौन सा एजम्पशंस करेंगे वो आप डिसाइड करेंगे। तो चलो 5 है क्लास मार्क, तो ऐड करते जाओ, हम लोग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा 22.5, राइट, 27.5, ओके। अगेन 27 के बाद 32.5 प्लस 5 कर दो 37.5, चलो उसके बाद 42.5, ओके, 47.5, ओके, अगेन 52.5, राइट। चलो एक्साई कोई भी एक एजम्पशन हम लोग कर सकते हैं बच्चों, मैं इसको कर देता हूं, चलो मान लो, राइट, तो मैं यहाँ पे इंडिकेशन कर देता हूं, दिस इज माई ए, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब हर एक के अंदर आप जानते हो तो ये कितना हो जाएगा 35, राइट, एक्साई माइनस ए, यहाँ पे जितना गैप है उतना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -5, -10, -15, -20, राइट बच्चों। सिमिलरली +5 +10 एंड +15, राइट। DI तो कॉलम 2 और कॉलम 4 का मल्टीप्लाई किस में आएगा? कॉलम 5 में आएगा। किस में आएगा? 5 में, राइट, ओके। सो हियर -16, राइट, यहाँ पे -120, ओके, -90 90, और यहाँ पे 10 5 -15, दिस वन इज 0, ओके, दिस वन इज 0, दिस वन इज 0, ओके, एंड 13, राइट, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव जो नंबर है उसका टोटल कर देते, तो नेगेटिव नंबर जो है आपने एक कितना एजम्पशन कर लिया, इधर लिख दो 37.5, ओके। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास है 35, ओके। हियर द FI/DI भी है, समेशन FI/DI। चलो सबसे पहले यहाँ पे तो 180 एंड 180 है ना, तो 180 170, राइट, 180 270 एंड 30 निकाल दो तो 290, कितना आ जाएगा -290, राइट। एक बार टैली भी कर सकते हैं हम लोग, देखो ये 0, फिर 5 एंड 4 14 प्लस 6 एंड 22, राइट, 2 क्या 320 होगा नेगेटिव, इसमें से आपने 30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड है, तो 0 12 -9 हो गया, अरे 290, राइट, ओके। चलो ये तो क्लियर है, ये तो छोटी ये मिस्टेक्स खाली नहीं होनी चाहिए टोटल की, क्योंकि टेबल राइट है तो मार्क्स 100% मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? मीन। चलो मीन की फॉर्मूला, राइट, सो मीन इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? A प्लस स्टेप डेविएशन में समेशन FI/DI अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बच्चों, राइट, क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो तो डेटा के हिसाब से हम लोग करते जाते हैं ताकि हमें पता चल जाए, बराबर, ओके। चलो दोनों टोटल है हमारे पास, ए कितना एजम्पशंस किया हमने? ए वाला पोर्शन बच्चों ए रहा ए, राइट। तो चलो राइट डाउन दिस, ए इज इक्वल टू 37.5 प्लस माइनस 290 एंड डिवाइड बाय 35, अंडरस्टैंड। सो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको इजी लग रहा है तो 5 से कट कर दो, तो क्या आ जाएगा ऊपर? अगर 5 से कर रहे हो तो 5 5 25, राइट, 5 5 25 40, तो 58 आएगा, अपॉन कितना बचेगा? 7। नाउ यू डिवाइड, ओके, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा इधर, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। तो देखो, तो अल्टीमेटली, ओके, फर्स्ट 5 6 56, 7 8 56, 2, राइट। सो यहाँ पे 0 हो गया, ओके। चलो
तो 20, 7 2s are 14, कितना आया 16, राइट बच्चों 16, तो 16 अगेन 7 8s are right 56, so approximate 8.28, so therefore 37.5 minus 8.28, right? So we just check this. Okay, so here the similarly हम सब्ट्रैक्ट कर देते 37.5 माइनस 8.28, राइट? सो 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, हियर 4 दैट मीन्स 2, ओके 9, ओके सो अप्रोक्सीमेट वी गॉट, ओके सो मीन इज इक्वल टू 29.22, so the answer is equal to right 29.22. तो यहाँ पे बच्चों सीधी बात हो गई कि अगर एवरेज सोच देखा जाए तो 29, ओके नंबर ऑफ जो बताया ना हमें टीचर्स, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, राइट? अब यहाँ पे अगर इंटरप्रेट करना है जैसे मोड की तरह, राइट? तो एक आप जानते हो बराबर, डेटा में हमें क्या दिया था फर्स्ट ऑफ दैट एरा, राइट? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, राइट, एंड नंबर ऑफ स्टेट्स दिए थे। तो अप्रोक्सीमेट हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है 22 29 एवरेज स्टूडेंट्स के पर एक टीचर है। चलो ये हमारा एनालाइज हो गया, अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे स्कोर रन्स, ओके एंड द बेसमेंट इज ऑलरेडी गिवन दैट, राइट? ओके सो द दिस क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आगे देख लेते बच्चों here, okay era question number 4, question number 5 क्या दिया है? The given distribution show the score the sum top batsmen of the world in the one day international cricket match। सामने स्कोर रन दिया और नंबर ऑफ बैट्समैन है, राइट? ओनली मोड ढूंढना है, यहाँ पे क्या ढूंढना है? ओनली मोड। ओके तो लेट्स स्टार्ट। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? तो सीधी बात है, मोड को अगर करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले हमारा काम क्या है कि यहाँ पे कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को चेक करना है। तो चलो बच्चों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता है हमें, राइट? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास है, राइट 18, कितनी है? 18, चलो 18 ये रहा 18, यहां से आपको सीधे ही पता चल गया। चलो राइट उसका मतलब साफ हो गया कि ये हमारे लिए F1 बराबर है, ये क्या हो गया हमारा? F1 बच्चों, राइट? सो दिस वन इज अ F1, सो F1, ओके दिस वन इज F0 एंड दिस वन इज अ F2, राइट? तो चलो बच्चों मॉडल क्लास, हियर द मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास कितना है? तो आप लिख सकते हो 4000 to 5000, राइट? दैट मीन्स लोअर लिमिट ऑफ दिस डेटा, ओके कितना हो जाएगा? 4000 हमारे लिए। F1 कितना है आपके पास? 18, F0 कितना आया? 4, ओके F2 कितना है आपके पास? 9, राइट? एंड क्लास लेंथ बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास लेंथ कितना है? 1000, कितना है यहाँ पे? 1000, राइट? लेट्स स्टार्ट मोड of the data, so mode is equal to L plus F1 minus F0 2F1, right, minus F0 minus F2 and into H. So the L is equal to how much? 4000, right, plus F1 minus F0, F1 18 minus 4 upon 36 minus 4 minus 9 and into 1000, राइट? चलो आगे बढ़ते तो फिर सो हियर सिंपल दैट मीन्स 4000 मेरे पास है, प्लस माइनस करते बच्चों 12 इंटू 100, सॉरी 1000 है, ओके 36 माइनस 13, 36 36 minus 13, right? Okay,
So therefore 4000 plus 12,000 divide by 36, so 3, 23. How much? 23. So we divide 1, 2, 000 divide by 23. So 25 5s are 115. 50 2s are okay. Again this 10 again 14. Okay, 40. So 21 jar 43. Sorry, 23. Right. So 17 1 carry for again 0. So 23. 170. So 20. Here 20. 23. 6 jar 18. 1 carry forward 13. So 23 7 jar 1 2 carry forward 14 and 16. Right. Yes. So 161 then 9. So 19. राइट तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेट ओके 23 रखा गया है ना, तो हम लोग कैसे नॉर्मली डिवाइड है 1200 डिवाइड बाय 23 अप्रोक्सीमेट, तो यहाँ पे आना चाहिए समथिंग। एक ही मिनट चेक कर लेते हैं। ओके 18 माइनस 14 होता है राइट। तो सॉरी फॉर दिस, हम लोग इरेज कर देते बच्चों ये वाला सिंप्लीफिकेशंस राइट। सो दिस वन इरेज दिस। ओके यहाँ पे क्या लिखा था ये वाला राइट। ये कितना है बच्चों 18 माइनस 4 14 होता है राइट। तो यहाँ पे आ गया 14000 डिवाइड बाय 23। चलो 23 6 जार ओके 23 6 जार 18 1 कैरी 30 सो 138 बच्चों। कितना 2 0 नीचे लाए यहाँ पे तो 20 आया, तो अगेन पॉसिबल नहीं है तो और एक 0 राइट। ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे 200 आ गया राइट। 140 मतलब ये वाला राइट। चलो 200 हो गया तो 200 मतलब 8 राइट। सो 23 8 जार 4 2 कैरी फॉरवर्ड 16 एंड 18 सो 184। कितना आया 184 84। चलो तो इधर क्या हो जाएगा 6, इधर 1 ओनली राइट। तो 16 अगेन एक डेसिमल से हम लोग क्या करते हैं 0, तो कितना हो गया 60 60। सो 60 जो है वो कितना आएगा 3 जार इंक्रीज हो जाएगा सो 2 राइट। 2 मतलब 46 कितना हो जाएगा 46 राइट। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट समथिंग, तो इधर आ जाएगा 4000 प्लस 608.7 समथिंग, अगर इसका हम लोग कर रहे हैं तो राइट। तो चलो अब मैं इसको रब कर देता हूं। सो दिस वन इज चलो ये रफ हो गया बच्चों राइट। अब हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच गए। सो द आंसर इज राइट इज इक्वल टू 4608.7. So the mode of the data of this okay 4608.7 understand। चलो आ गया समझ में बच्चों। सो सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, बहुत सिंपल है। खाली हमें क्या करना है मोड ही फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी तो एक ए सम खाली मैं आपको होमवर्क के तौर पे आपको यहाँ पे दे रहा हूँ राइट। क्या कर रहा हूँ होमवर्क ए सम आपको होमवर्क में करना है। चलो क्लियर समझ में आ गया अंडरस्टैंड ओके। तो बस ए जो वाला पोर्शन है वो आपको खाली ड्रॉ करना है बस ए वाला गॉट इट राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपको होमवर्क में करना है राइट। तो आई थिंक आपको पूरा मोड समझ में आ गया होगा। मीन मोड अब कंप्लीट है ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम फॉर वॉचिंग मी टिल देन एंड बाय बाय।